ठीक है। We have already discussed about the features of Indian economy at the eve of independence. ये हमने सुबह डिस्कस किया था, features of Indian economy. Now this time we are going to discuss about the agriculture sector, the condition of agriculture sector on the eve of independence. ठीक है बेटा, I have divided all these topics in these 6 parts. हम agriculture sector कैसा था, आजादी के बाद हमारा इकोनॉमी बैकवर्ड था, उसके अलावा आपने पढ़ा जो भी चीजें आपने पढ़ा बाइफरकेट करके पढ़ेंगे, अलग अलग एरियाज में उसको बाइफरकेट किया है मैंने, एग्रीकल्चर सेक्टर, ट्रेड, ठीक है, टैरिफ, ये सब चीजों को हम अलग अलग करके पढ़ेंगे। लिसन, तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस द फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर की क्या स्थिति थी ये हम डिस्कस करेंगे। सबके पास कॉपी है हाथ में? जो भी अटेंड कर रहे हो बेटा क्लास, कॉपी हाथ में रखो और ये सारे पॉइंट्स को लिखते जाओगे। ठीक है, लिसन, फर्स्ट एग्रीकल्चर सेक्टर का पहला पॉइंट है लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। लो प्रोडक्शन एंड लो प्रोडक्टिविटी, यू नो दैट ड्यू टू लैंड रेवेन्यू सिस्टम व्हाटएवर adopted by the British rule, the benefit is only goes to zamindars and the British government, and the tillers who are the actual worker on the field have not getting any, they are not getting benefits of the benefits of agriculture product. That is why the productivity is low, because there is no investment on the infrastructure related with the irrigation, related with other harvesting of seed, fertilizer, etc. So due to no any support, due to no any financial assistance, due to no development in the infrastructure, production in agriculture is very low. Per hectare जो production था वो काफी low था, ठीक है, and productivity is also low. देखो production और productivity दोनों में अंतर है। Production means overall production throughout the year. Productivity means per hectare yield. एक खेत में एक पर्टिकुलर प्लॉट में की जो प्रोडक्टिविटी है वो डिपेंड करती है हाउ मच सॉइल इज फर्टाइल। इफ द सॉइल इज नॉट फर्टाइल, इफ इरिगेशन फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल, द प्रोडक्टिविटी इन दैट एरिया और दैट लैंड इज लो। So due to no effort made by the British government or the zamindar for related with the agriculture infrastructure, that is why the low production is low and the productivity of the land is also very low. ठीक है, so this is the first feature of agriculture sector. क्या था? Production भी low था और productivity, but the productivity is also low. Why? Due to no effort made by British government or zamindar. Okay बेटा, इस बात को ध्यान से सुनो और नोट कर लो, एग्जाम में सारे पॉइंट्स आप लिखने हैं आपको। ठीक है, एक्सप्लेन तो तुम कर लोगे बट यू विल हैव टू प्रोवाइड द पॉइंट्स। तो पहला पॉइंट हुआ एग्रीकल्चर सेक्टर का लो प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट है हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या हुआ? अनसर्टेन रेनफॉल, बिकॉज मोस्टली at that time mostly the farmer are dependent on the rain for irrigation. सिंचाई के लिए ज्यादातर they are dependent on the monsoon, they are dependent on the rain. If monsoon is failed, they can't able to grow the crops and it hampers their production, it hampers their work. It means high degree of uncertainty because rain is uncertain. कभी rain time से होगा, कभी monsoon time पे नहीं होगा, कभी नहीं होगा, सूखा पड़ेगा। तो उस टाइम आपने देखा होगा मोस्टली they are facing the situation like drought, ठीक है, एंड स्टार्वेशन। समझ गए बेटा? ज्यादातर अनसर्टेनिटी ऑफ रेन, अनसर्टेन रेनफॉल, अनसर्टेन मॉनसून, दे आर फेसिंग द सिचुएशन ऑफ अनसर्टेन प्रोडक्शन। ओके, सो दिस इज द बेसिक, अनदर बेसिक फीचर ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, दो फीचर आपने पढ़ा, पहला लो प्रोडक्टिविटी, सेकेंड अनसर्टेन रेनफॉल। इसको आप अनसर्टेनिटी भी लिख सकते हो या अनसर्टेन रेनफॉल भी लिख सकते हो। ठीक है बेटा, नाउ थर्ड वन इज सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग का मतलब होता है प्रोडक्शन ओनली फॉर द सेल्फ कंजम्पशन। देखो प्रीवियसली इन इंडिया पीपल आर मोस्ट दोज हु आर engage in this type of farming activity or agriculture activity, mostly they grow the crops for their self use, for self consumption only.
वो सिर्फ अपने कंजम्पशन के लिए फूड ग्रेन उगाते थे। दे हैव नो टेंडेंसी टू सेल द सरप्लस इन द मार्केट। सरप्लस उगाने की उनकी कोई टेंडेंसी नहीं होती थी, बिकॉज इट वाज ट्रेडिशन एट दैट टाइम। तो मोस्टली दे ग्रो द क्रॉप्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन, सेल्फ सस्टेनेंस कहते हैं। सो नो सरप्लस क्रॉप ग्रोन बाय देम, दैट इज व्हाई they have no surplus income. ठीक है, they have no surplus production and no surplus income. So mostly they are growing those crops which they use for self consumption. वो सिर्फ उन crops को उगाते थे जो वो खुद खा सके, गेहूं, चावल, दाल, ठीक है, ये सब। अब जो कमर्शियल क्रॉप था वो उसे नहीं, they are not फोकस अबाउट दैट, वो उसकी तरफ फोकस नहीं थे कि हमें जूट उगाना चाहिए या हर्ब्स उगाना चाहिए या वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एडिशनल मार्केट में सेल करके। नो, दे हैव नो टेंडेंसी ऑफ दैट। बट आपने ये भी देखा कि कैश क्रॉप उगाने के लिए ब्रिटिशर्स ने कैश क्रॉप उगाने के लिए उनको फोर्स किया था, जिसमें आपने पढ़ा है इंडिगो मूवमेंट के बारे में, हिस्ट्री में पढ़ा है। दे फोर्स देम टू ग्रो इंडिगो व्हिच आर बेसिकली रिस्पांसिबल फॉर द reduction in the fertility of the soil. They also force them to grow cotton. They also force them to grow jute. तो इस तरह फोर्स करते थे, but actually the tendency was, the actual tendency to actual nature of agriculture was self-subsistence. It means actually the farmers grow those crop only which required for their self-consumption. ठीक है, तो subsistence का मतलब यही होता है, for self-consumption. Next is small land holdings. Still today we having स्मॉल लैंड होल्डिंग, मतलब छोटे छोटे जमीन के टुकड़े। आप देखते हो जितना जमीन नहीं होता उसके बीच में उतना ज्यादा उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो अर्लियर आल्सो सेम कंडीशन वाज देयर, पहले भी यही था। छोटे छोटे लैंड होल्डिंग्स होने की वजह से उनका प्रोडक्शन पर हेक्टर प्रोडक्टिविटी जो है वो लो हो जाता है। छोटे खेत होने की वजह से पर हेक्टर लो प्रोडक्टिविटी होने का एक कारण है स्मॉल लैंड। स्मॉल लैंड होल्डिंग्स का मतलब है पर्सन हैविंग वेरी स्मॉल प्लॉट्स। ठीक है, नेक्स्ट है, इसलिए वो कभी भी एक्सटेंसिव फार्मिंग को या बड़े पैमाने पे खेती नहीं कर पाते थे क्योंकि स्मॉल लैंड होल्डिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा लैंड रेवेन्यू सिस्टम। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। ये एग्रीकल्चर सेक्टर के बैकवर्ड होने का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन आपका यही है। ठीक है, दिस इज द इंपॉर्टेंट रीजन। देख लो, दिखाई दे रहा है, इसको नोट कर लो। लैंड रेवेन्यू सिस्टम, कौन सा लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, किसी को याद है? लैंड रेवेन्यू सिस्टम याद है? इट इज जमींदारी सिस्टम, रईतवारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम। ठीक है, तो दिस लैंड रेवेन्यू सिस्टम, अंडर दिस लैंड रेवेन्यू सिस्टम, जमींदार वर द एक्चुअल ऑनर ऑफ द लैंड। ऑनर वो होते थे। They collect revenue from the tiller. Tillers mean those who are working on the field. They collect the revenue from the tiller and they deposit it to the Britishers. But Britishers have norms to pay some fixed amount. Britishers को ने एक नॉर्म बनाया था कि आपको एक फिक्स अमाउंट में हमको रेवेन्यू देना है। But जमींदार्स have given right that they can collect any types of any amount of revenue. उनको छूट मिली थी कि आप कितना भी अमाउंट कलेक्ट कीजिए, मुझे इतना परसेंट, मुझे इतना दे देना है। मान लो फॉर एग्जांपल, मान लो 1 लाख तुम्हें लगान चुकाना है, तो जमींदार को 1 लाख चुकाना है तो वो टिलर से 5 लाख कलेक्ट करते थे। ठीक है, तो इस तरह से ये जो लैंड, दे आर लिविंग लग्जरियस लाइफ। जमींदार्स आर लिविंग लग्जरियस लाइफ। इन अदर हैंड, द टिलर, द एक्चुअल वर्कर of the land, they are not getting any benefits, they are not getting any surplus amount, and they are living in a miserable condition. They have no surplus money to invest on agriculture infrastructure. उनके पास तो पैसा था ही नहीं। और जमींदार लोग mainly focus on the collection of revenue. They are not interested in investment regarding the agriculture infrastructure. वो उनके agriculture infrastructure में प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए या सिंचाई की सुविधा दिया जाए या अदर बेनिफिट्स दिया जाए, ऐसा उनकी कोई सोच नहीं थी, उनका कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था। They are mainly interested in collection of revenue. So सिर्फ उनको ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करना है, इसी पे उनका फोकस था। ठीक है, so land revenue system is also responsible for the backwardness of agriculture sector.
ठीक है, बिकॉज these zamindars collect high revenue from the dealers. They do not make any investment on the agriculture infrastructure. This and due to this, agriculture sector become backward. ठीक है, नेक्स्ट है आपका गल्फ बिटवीन जमींदार एंड टीलर. इसको भी नोट करो, ये दिखाई दे रहा है. राइट डाउन गल्फ बिटवीन जमींदार्स एंड टीलर्स. जमींदार मतलब द ओनर ऑफ द लैंड एंड टीलर्स दोज हु आर वर्किंग ऑन द फील्ड. तो ये हो गया जो खेत पे काम कर रहे हैं. दे आर लाइक एग्रीकल्चर लेबरर. वो सिर्फ एक एग्रीकल्चर लेबरर के रूप में काम कर रहे थे. The owner is zamindar, so they are living luxurious life and they are not taking any interest regarding the development of infrastructure. So the gulf between they are collecting high revenue. Zamindars are collecting high revenue from the tillers, and tillers are living in the poverty. They are living in miserable condition. They have no economical benefit. That is why it creates a huge gap between the landowner and the tiller. तो दोनों के बीच में एक काफी गैप क्रिएट हो गया, एक खाई बन गया. एंड इट आल्सो आर रिस्पांसिबल फॉर द सोशल टेंशन अमंग द टीलर्स एंड जमींदार. तो टीलर जमींदार को अपना दुश्मन मानेंगे ही, क्योंकि उनका सिर्फ फोकस था लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना. उनको कोई किसी भी तरह का कोई हेल्प या सपोर्ट नहीं देना. तो इट क्रिएट अ ह्यूज गैप. तो दिस इज द बेसिक फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर. प्लीज राइट डाउन ऑल द पॉइंट्स. ये सारे पॉइंट्स आप एग्जाम में लिखोगे. फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर लिख लिया क्या सबने? लिख चुके हो बच्चों? बेटा लिखे हो? बच्चों am I audible to you or not? बोल क्यों नहीं रहे हो? प्रियंका, सिल्की जैन, तनु, नोट कर लिया सबने ये फीचर्स? ये फीचर्स नोट कर लो. अगर नहीं दिख रहा है तो बताओ, मैं ओरली लिखवा देती हूँ. इज इट विजिबल? यस मैम. ठीक है, ओके राइट. Have you written, students? Yes ma'am. Okay, now the next topic है इधर आओ. Is it visible? This is visible to you? ये दिख रहा है? Yes ma'am. क्या लिखा है? Industrial sector on the eve of independence. Yes, very good. So the next topic is industrial sector. Agriculture की स्थिति आपने देख लिया. After independence, agriculture sector stagnant था. Agriculture sector low productivity था. They are facing the situation of uncertainty. Mostly self-subsistence, farming for the self-subsistence and land revenue system. These are the basic features. Now another topic जो हम अभी discuss करने जा रहे हैं, that is जैसे industrial sector का क्या हाल है. देखो industrial sector में भी आप देखोगे systematic deindustrialization. You know the meaning of deindustrialization? देखो industrialization का मतलब होता है इंडस्ट्री को establish करना, और deindustrialization का मतलब होता है इंडस्ट्री को खत्म करना. तो उन्होंने ऐसी पॉलिसी अडॉप्ट की जिसमें deindustrialization हुआ. कैसे? You know that India is mostly famous. उस समय इंडिया जो था फेमस किसमें था? हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में. So the goods of handicraft industry was demanded in the foreign countries also. But the British have used such policy. देखो क्या पॉलिसी उन्होंने अडॉप्ट किया? एक्सपोर्ट ड्यूटी और इंपोर्ट ड्यूटी. देखो ये टैरिफ जिसको कहते हैं, उन्होंने जो फिनिश गुड्स था हमारे स्टेटस को चेंज कर दिया. They are mostly selling the finished goods in India and they are exporting raw material from India to their own country. हमारा देश जो पहले हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के फिनिश प्रोडक्ट को बेचता था, उसके स्टेटस को बदल के क्या कर दिया गया कि अब हमारा कंट्री सिर्फ रॉ मटेरियल ही एक्सपोर्ट कर सकता है, और फिनिश गुड्स व्हिच इज मेड बाय द मशीन केम फ्रॉम ब्रिटिश टू इंडिया. तो एक ऐसा ट्रेडिशन डेवलप हुआ कि हमारा धीरे धीरे हमारे गुड्स का डिमांड इंडिया में खत्म हो गया.
देखो सिंपल सा लॉजिक है, अगर आपके पास मशीन मेड गुड्स आएगा चीप रेट पे, बेस्ट क्वालिटी, तो लोग उसी को डिमांड करेंगे। तो ड्यू टू मोर डिमांड ऑफ ब्रिटिश मशीन मेड फिनिश गुड्स हमारे, एंड ड्यू टू more demand of finished goods, our handicraft industry faces the situation of shortage of demand. हमारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री ने डिमांड के शॉर्टेज को झेलना शुरू किया और धीरे धीरे डीइंडस्ट्रियलाइज हो गया, यानी धीरे धीरे वो सब खत्म हो गया। एक तो ये हुआ, सबसे पहले उन्होंने मशीन मेड गुड्स को बेचना शुरू किया, जिसकी वजह से हमारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री खत्म हो गया। दूसरी तरफ दे आर नॉट टेकन एनी, देखो मैंने इसको दो पार्ट में इसलिए बांटा है। सबसे पहले उन्होंने हमारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय किया, कैसे? by flooding the machine made goods in India। पूरा हमारे मशीन मेड गुड्स हमारे मार्केट में, इंडियन मार्केट में उन्होंने भर दिया। तो जनरली मार्केट में मशीन मेड गुड्स आ गए जो कि सस्ते थे, अच्छे थे, तो people were mostly interested to buy that particular goods and systematically it was destroyed। handicraft industry destroy हो गया। और दूसरा क्या किया? bleak growth of modern industry। तो बदले में क्या करना चाहिए था? मॉडर्न इंडस्ट्री लगाना चाहिए था। इफ दे आर सेलिंग द मशीन मेड गुड्स इन इंडिया, दे हैव टू फोकस ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन ना, दे हैव टू फोकस टू क्रिएट मॉडर्न मशीन हियर इन इंडिया आल्सो, बट दे आर नॉट टेकिंग सच टाइप ऑफ स्टेप्स। वो उस तरह के स्टेप्स नहीं ले रहे कि हमारे देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो। तो ब्लीक किसी को कहते हैं, ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। हमारे यहाँ मॉडर्न मशीनरी या मॉडर्न इंडस्ट्री का ग्रोथ काफी कम था, कम क्या न के बराबर था, ठीक है। तो एक तरफ उन्होंने ओल्ड ट्रेडिशन को, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को खत्म कर दिया, और दूसरी तरफ उन्होंने किसी भी तरह का मॉडर्न इंडस्ट्री को एस्टैब्लिश नहीं किया, ठीक है। सो दीज आर द रीजन ऑफ डीइंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी जो हमारा इंडस्ट्री था, आइडेंटिटी था, इट वाज डिस्ट्रॉयड एंड नो मॉडर्न इंडस्ट्रीज हैव बीन एस्टैब्लिश्ड बाय द ब्रिटिश। सो इट इज कॉल्ड डीइंडस्ट्रियलाइजेशन। प्लीज राइट डाउन दिस पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्क्रिमिनेशन टैरिफ पॉलिसी। टैरिफ वही मैंने आपको बताया कि क्या होता था, अगर वहां से कोई फिनिश गुड्स आ रहा है वो ड्यूटी फ्री होता था। ड्यूटी फ्री इंपोर्ट आएगा तो उसमें कोई टैक्स नहीं होगा, ठीक है। और ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, अगर यहां से जो रॉ मटेरियल जा रहा है वो ड्यूटी फ्री होगा, वहां से जो फिनिश गुड्स आ रहा है वो ड्यूटी फ्री होगा, मतलब उस पर कोई टैरिफ नहीं लगेगा। लेकिन अगर हमारे कंट्री के लोग कोई फिनिश गुड्स को बाहर में बेचेंगे, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के प्रोडक्ट को बेचने जाएंगे, तो दे पुट टैरिफ ऑन दैट, तो उसमें वो टैरिफ लगेगा। इसी को कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन, मतलब भेदभाव। अगर हमारे प्रोड्यूसर अगर बाहर एक्सपोर्ट करते हैं तो उस पर ड्यूटी लगेगी, यानी उस पर टैरिफ लगेगा। लेकिन अगर वो अपने रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट कर रहे हैं हमारे कंट्री से, तो वो ड्यूटी फ्री रहेगा, उसमें कोई टैरिफ नहीं है, ठीक है। दूसरी तरफ जब हमारे यहाँ कोई इनकम ब्रिटिश या इंग्लैंड से कोई प्रोडक्ट आता है, इंपोर्ट होता है, तो उस पर टैरिफ लगेगा कि नहीं? सॉरी, उस पर टैरिफ नहीं लगेगा। अगर हमारे कंट्री के लोग कुछ इंपोर्ट करेंगे तो उस पर टैरिफ लगेगा, ठीक है। Whatever export and import done by the Britishers, they are without tariff duty, ठीक है। And whatever export and import done by Indians, they put tariff on that, ठीक है। So this is the discrimination tariff policy। ये था भेदभाव जो उन्होंने टैरिफ पे लगा रखा था, ठीक है। This is the most important discrimination point। सबसे बड़ी बात यही है और सबसे ज्यादा ट्रेड को इसीलिए खत्म किया, ठीक है। इसकी वजह से उन लोगों का सामान हमारे यहाँ सस्ता था, सस्ता भी था, अच्छा भी था, क्योंकि मशीन मेड गुड्स था, हमारे यहाँ मशीन भी था नहीं। तो दिस इज द टैरिफ पॉलिसी। इसको डिस्क्रिमिनेटिंग का मतलब डिस्क्रिमिनेशन से बना हुआ, डिस्क्रिमिनेटिंग टैरिफ पॉलिसी, ठीक है। इंडियन गुड्स पे टैरिफ लगता था और ब्रिटिश गुड्स पे टैरिफ नहीं लगता था। इंडियन रॉ मटेरियल टैरिफ फ्री होता था, इंडियन फिनिश गुड्स पे टैरिफ लगता था, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा कंपटीशन फ्रॉम द मशीन मेड गुड्स। अब क्या हुआ, इंडियन मार्केट में सिर्फ मशीन मेड गुड्स भर गया, ठीक है, खाली मशीन मेड गुड्स भर गया इंडियन मार्केट में। अब क्या होगा, अगर आपके इंडियन मार्केट में मशीन मेड गुड्स है जो कि चीप है और ज्यादा फिनिशिंग अच्छा है, तो जाहिर सी बात है कि लोग उसी का डिमांड करेंगे, और धीरे धीरे हमारा डिमांड का पैटर्न बिल्कुल बदल गया। आज भी देखो, फ्रॉम दैट पीरियड टिल डेट हमारा लिविंग कल्चर कितना बदल गया है।
बदल गया है ना, हम ज्यादातर बाहरी चीजों को पसंद करते हैं, ठीक है। तो इसका शुरुआत वहीं से हुआ था बेटा। तो इस तरह से धीरे धीरे इंडियन जो मार्केट था इट फ्लडेड विद द ब्रिटिश गुड्स। धीरे धीरे हमारे इंडियन मार्केट में सिर्फ ब्रिटिश गुड्स, मशीन मेड गुड्स बन गया, ठीक है। सारा ट्रेडिशन ही बिल्कुल बदल गया, तो डिमांड पैटर्न ही चेंज हो गया। ये कंपटीशन क्योंकि हमारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के बने हुए गुड्स जो थे उस ब्रिटिश मशीन मेड गुड्स के कंपटीशन को झेल नहीं पाए, बिकॉज आवर गुड्स वर कॉस्टलियर, क्योंकि मशीन जल्दी गुड्स बनाता है, फिनिशिंग अच्छा होता है, हैंडमेड गुड्स में टाइम लगता है और इसलिए वो महंगे होते हैं। तो हमारे गुड्स, इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के गुड्स फॉरेन मशीन मेड गुड्स के साथ compete नहीं कर पाए और धीरे धीरे हमारा इंडस्ट्री खत्म हो गया और इस तरह से डिंडस्ट्रियलाइजेशन और कंपटीशन के बीच में हमारा मशीन मेड गुड्स ने हमारे ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट गुड्स को हरा दिया, ठीक है। नेक्स्ट है न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड। जो पहले हमारा कंट्री जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को के गुड्स को यूज किया करता था, चाहे कुछ भी ले लो एग्जांपल में, क्लोथ्स हो, डेली यूज मटेरियल हो, ऑल द कंज्यूमर गुड्स। तो जितने भी कंज्यूमर गुड्स होते हैं जो पहले हमारा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के गुड्स का जो डिमांड होता था, इट हैज बीन टोटली कन्वर्टेड। तो डिमांड पैटर्न बिल्कुल बदल गया। अभी आप देखो ना, हमारा खान पान नहीं बदल गया है। पहले क्या हम लोग चाइनीज खाते थे, फास्ट फूड इतना खाते थे, अपने मम्मी से पूछना, अपने दादाजी लोगों से पूछना, नहीं, एकदम सिंपल हमारा ट्रेडिशनल खाना होता था, ठीक है। लेकिन आज हमारा बिल्कुल ऐसा किसी के घर नहीं होगा जहां मैगी और फास्ट फूड ये सब नहीं बनता होगा और बच्चे पसंद नहीं करते होंगे। इट मींस आवर टेस्ट ट्रांसफॉर्म। सिमिलरली उस समय से शुरुआत हुआ हमारा डिमांड, उस समय मशीन मेड गुड्स का डिमांड करने लगा और हमारा जो डिमांड का पैटर्न था, जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का डिमांड करते थे, हैंडीक्राफ्ट गुड्स का डिमांड करते थे, वो बिल्कुल अब मशीन मेड गुड्स का डिमांड करने लगे। तो डिमांड पैटर्न चेंज। नेक्स्ट है आपका बेटा इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे, और इसमें बहुत बड़ा रोल है रेलवे का। कैसे? रेलवे के इंट्रोडक्शन से बल्क में सामान लाना। देखो रेलवे भले हमें आप उसका बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन रेलवे का एस्टैब्लिशमेंट ब्रिटिश ने किया था अपने बेनिफिट्स के लिए, टू ट्रांसपोर्ट द बल्क ऑफ गुड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वो बल्क में जो सामान ब्रिटिश फिनिश गुड्स को लाते थे, पोर्ट पे लाते थे, पोर्ट से फिर उसको सामान को कंट्री के अलग अलग एरिया में भेजते थे बल्क में, ह्यूज अमाउंट में, क्योंकि उनको तो हमारे मार्केट में भरना था ना मशीन मेड गुड्स को। तो वो बहुत आसान हो गया उनके लिए रेलवे के थ्रू। तो रेलवे ने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया है हमारे डिमांड पैटर्न को बदलने में, बिकॉज इन एवरी एरिया they can easily transport the goods in the bulk, जिसको कह सकते हो in the bulk they provide, they transport the goods very easily। रेलवे से काफी ह्यूज अमाउंट में ट्रांसपोर्टेशन होता था, किसका? हमारे देश में फिनिश गुड्स का, और हमारे देश से रॉ मटेरियल को वो अपने देश में आराम से पोर्ट तक पहुंचाने में उनको मदद करता था, ठीक है। ह्यूज अमाउंट में वो रॉ मटेरियल को कलेक्ट करते थे डिफरेंट एरिया से रेलवे के थ्रू, ठीक है, और फिर उसको पोर्ट पे पहुंचाना उनके लिए आसान था। इसी तरह से डिफरेंट एरियाज में उनका मशीन मेड गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना रेलवे के थ्रू बहुत आसान था, ठीक है। समझ में आ रही बात? तो these are the basic features for of industrial sector at the eve of independence। तुमने देखा एग्रीकल्चर सेक्टर खत्म कर दिया गया, इंडस्ट्रियल सेक्टर को बर्बाद कर दिया गया, ठीक है, और इकोनॉमी को बैकवर्ड कर दिया गया, ठीक है। सो दीज आर द पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू डिस्ट्रॉय द इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय करने के लिए ये सारा अडॉप्ट किया गया था, और इसकी वजह से हमारा जो एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हमारा जो इकोनॉमी था, दैट वाज स्टैग्नेंट, दैट वाज बैकवर्ड, लो लेवल ऑफ जीडीपी, लो लेवल ऑफ ग्रोथ, ठीक है, पॉवर्टी, डिस्क्रिमिनेशन, स्टारवेशन, ये सारा सिचुएशन हम झेल रहे थे एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये सारा तुम नोट कर लो बेटा, राइट डाउन द पॉइंट्स। ये इंडस्ट्रियल सेक्टर वाला तो नोट कर ही लिए हो। इंडस्ट्रियल सेक्टर दिख रहा है बेटा? ये इंडस्ट्रियल सेक्टर दिख रहा है? इज इट विजिबल? सारा पॉइंट दिख रहा है? टोटल 5 पॉइंट्स हैं बच्चों। मैम लास्ट लाइन नहीं दिख रहा। लास्ट लाइन नहीं दिख रहा है?
अब देखो, Yes, ma'am. ओके राइट। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है फीचर्स आएगा ही आपका, ये 5 नंबर में क्वेश्चन आएगा या 6 नंबर में, राइट द फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, तो ये 6 पॉइंट, और राइट द फीचर्स ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, तो ये पूरा का पूरा ये 5 पॉइंट, ये सारा पॉइंट लिखोगे फिर इसको एक्सप्लेन करोगे। और देख लो अगर कोई डाउट है किसी में तो पूछ सकते। Have you written? लिख लिया बेटा? लिख लिया बच्चों? अभी मैं थोड़ा सा एक और चीज पढ़ा देती हूँ, इसको हम कल वैसे डिटेल में पढ़ाएंगे, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। नेक्स्ट आता है कि इंडियन एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया के लोगों का कंडीशन कैसा था। अभी तक हमने पढ़ा कि एग्रीकल्चर सेक्टर का क्या कंडीशन था, इंडस्ट्रीज का क्या कंडीशन था, लेकिन लोगों का क्या कंडीशन था। आपने तो देखा ना यहाँ पे कि लोगों का यहाँ पे लो प्रोडक्टिविटी था, यानी कि बहुत यहाँ पे गरीबी, पर कैपिटा इनकम काफी लो था। तो कंडीशन, डेमोग्राफिक कंडीशन कैसा था। देखो डेमोग्राफिक कंडीशन होता है क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ पॉपुलेशन था। उस समय बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों बहुत ज्यादा था, डेथ रेट भी बहुत ज्यादा था और बर्थ रेट भी बहुत ज्यादा था। क्यों? क्योंकि किसी भी तरह का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट नहीं हुआ था। किसी भी अचानक से कोई महामारी या बीमारी फैल गया तो लाखों करोड़ों लोग खत्म हो जाते थे। ज्यादातर आप उस समय सुनते होंगे किसी भी तरह का नेचुरल डिजास्टर या कोई बीमारी, प्लेग फैल गया, डायरिया फैल गया, तो ये जो चीजें आज ट्यूबरक्लोसिस की वजह से लोग मारे जाते थे, जो आज छोटी छोटी बीमारियां हैं मानी जा रही है, वो उस समय बहुत, जैसे आप कोविड को बहुत बड़ा बीमारी मान रहे हो ना, उस समय ये डायरिया, कॉलरा, प्लेग ये जो होता था ना, वैसे कोविड की तरह होता। क्यों? हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं था। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही लो लेवल पे काम कर रहा था, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हेल्थ सेक्टर में नहीं हुआ था बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, तो मोर्टेलिटी रेट बहुत ही ज्यादा था। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट समझ ही रहे हो, शिशु मृत्यु दर, जो इन्फेंट जिसका जन्म हुआ और 1 साल के अंदर जिनकी मृत्यु हो गई, अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज्यादा है यानी कि वहां हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर कंडीशन है। तो हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का पुअर कंडीशन था। इट विल रिवील थ्रू द लाइफ एक्सपेक्टेंसी। आपको पता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना था? 32 ईयर्स। एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ 32 ईयर्स। 32 ईयर्स तो यंग और जनरेशन माना जाता है, और उनके लिए उस समय लाइफ एक्सपेक्टेंसी 32 इयर्स था। तो इसी से सोच लो कितना पुअर कंडीशन होगा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का, लोगों का हेल्थ का। ठीक है, लो लेवल ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी, हाई लेवल ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, हाई लेवल ऑफ बर्थ रेट एंड हाई लेवल ऑफ डेथ रेट ऑल्सो। ठीक है, एंड अनदर इज, ये सब बताता है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का कंडीशन क्या था। According to the government, 7% in women and only 12% in the male. सिर्फ 12% लिटरेसी रेट था। ठीक है, पर कैपिटा इनकम इज आल्सो वेरी लो, अबाउट 20 रुपीज पर कैपिटा इनकम था उस समय में। आप इसी से सोच लो क्या कंडीशन हुआ होगा, क्या कंडीशन होगा लोगों का, कितने पुअर होंगे लोग। ठीक है, दे कांट एबल टू अवेल द बेसिक फूड, इवन फूड भी अवेल नहीं कर पाते थे। जो आप देख रहे हो टिलर्स का, लैंड लेबर का, क्योंकि वर्क ही नहीं था। एग्रीकल्चर सेक्टर डिस्ट्रॉय हो चुका था ड्यू टू लैंड रेवेन्यू सिस्टम। इंडस्ट्रियल सेक्टर जो हमारा फेमस इंडस्ट्रियल सेक्टर था, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, उसको उन्होंने डिस्ट्रॉय ही कर दिया। तो जब डिमांड ही नहीं है किसी चीज का, जब इंडस्ट्रियल गुड्स का, हमारे इंडस्ट्रियल गुड्स का डिमांड ही नहीं है, तो जो लोग उससे जुड़े हुए थे दे बिकम अनएम्प्लॉयड।
तो ह्यूज लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो देयर। हमारे फार्मिंग एंड फार्मिंग की स्थिति क्या थी, लो प्रोडक्टिविटी, इट मींस पर कैपिटा इनकम का लो होना और जीडीपी का लो होना, तो बिल्कुल ऐसा, बिकॉज मोस्टली द पीपल आर डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर सेक्टर इज ऑन पुअर कंडीशन, ठीक है, क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर तो उनका डेवलप हो रहा था, हमारा तो डेवलप हो नहीं रहा था। दूसरी तरफ एग्रीकल्चर सेक्टर पे जो डिपेंडेंसी थी वो बढ़ती जा रही, ठीक है, पुट द प्रेशर ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर एंड एग्रीकल्चर सेक्टर इज ऑलरेडी overcrowded and low, facing the situation of low productivity. तो कह सकते हैं कि ओवरऑल डेमोग्राफिक कंडीशन इज ऑल्सो, ठीक है, डेमोग्राफिक कंडीशन भी हमारा पुअर था। डेमोग्राफिक कंडीशन में क्या क्या लिखोगे, डेमोग्राफिक कंडीशन में लिखोगे बेटा लिटरेसी रेट, दोनों का मेल फीमेल का लिटरेसी रेट, एजुकेशन से रिलेटेड है ये। उसके अलावा लिखोगे लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये हेल्थ को बताता है, ठीक है, और डेथ रेट, बर्थ रेट, इंक्लूडिंग जीडीपी, पर कैपिटा इनकम, जीडीपी, ये सबको ऐड करोगे, ये क्वांटिटी बताते हैं, डेथ रेट बर्थ रेट क्वांटिटी बताते हैं, और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये हेल्थ बताते हैं। उसी तरह लिटरेसी रेट जो है वो आपका एजुकेशन सेक्टर के बारे में बताता है। तो ऑल दीज डेटा प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन दैट at the eve of independence we are living in poor condition. Our demographic condition is also poor, our agriculture sector is also stagnant and backward, our industrial sector was destroyed, and there is huge level of unemployment, ठीक है। तो ये तुम्हारा ओवरऑल हुआ इस चैप्टर का ओवरऑल समरी जो आपका निकल के आता है एग्रीकल्चर, ट्रेड और डेमोग्राफिक कंडीशन का। आगे बढ़ेंगे बेटा इसी चैप्टर में, एक चीज आपका रह गया है जो हम आगे डिस्कस करेंगे, वो है कि क्या कोई पॉजिटिव चेंज भी हुआ, क्या कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ा ब्रिटिश गवर्नमेंट का, ब्रिटिश रूल का, क्या कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा होगा, कोई बता सकता है कुछ? क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट का, ब्रिटिश रूल का कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ा है? एनीबॉडी एल्स, कोई बताएगा? भाग जाओगे अब। तनु, विजयलक्ष्मी, देखो पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है, आप देखोगे जैसे रेलवे का ही हमने डिस्कस किया कि रेलवे डिस्कवर किया गया, रेलवे स्टार्ट किया गया, उन्होंने अपने बेनिफिट के लिए किया, लेकिन कहीं ना कहीं रेलवे का कॉन्सेप्ट हमारे पास या इंपॉर्टेंस तो हमें भी समझ में आया और हमने भी उस रेलवे का फायदा हम आज भी उठा रहे हैं। तो ये मतलब आप कह सकते हो कि गलती से मिस्टेक हो गया, मतलब उन्होंने तो अपने फायदे के लिए किया लेकिन उनकी जो गलती थी वो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। तो ठीक है, तो रेलवे का बेनिफिट्स पोस्ट ऑफिस उन्होंने शुरू किया था, पोस्टल डिपार्टमेंट फॉर कम्युनिकेशन करने के लिए, अपने कम्युनिकेशन के लिए, तो हमें भी वो हमने भी सीख लिया। टेलीग्राफ तो खत्म हो गया टेलीग्राफ, तो वो सारा चीज जो न्यू टेक्नोलॉजी उन्होंने अपने यूज के लिए यहाँ स्टैब्लिश किया, उसको उसकी जानकारी हमें मिल गई। और कहीं ना कहीं जो हमारे अंदर जो रिफ्ट था, डिस्क्रिमिनेशन था आपस में, जाति को लेके, धर्म को लेके, वो कहीं ना कहीं रेलवे के इंट्रोडक्शन से थोड़ा कम हुआ बेटा, क्योंकि रेलवे में सभी लोग ट्रेवल करते थे, चाहे वो किसी भी कास्ट के। तो कहीं ना कहीं हमारा जो रिफ्ट था वो कम होने लगा, और इट क्रिएट्स अ फीलिंग ऑफ यूनिटी ड्यू टू ट्रैवलिंग टुगेदर। एक साथ जब यात्रा करने लगे तो हम कहीं ना कहीं इट क्रिएट जो गैप था ये कहीं ना कहीं रिड्यूस हुआ, एंड क्रिएट सच ऑफ एनवायरनमेंट in which people can interact each other and it create a feeling of unity among them. तो कहीं ना कहीं इससे यूनिटी की फीलिंग क्रिएट होने लगा, and it has positive impact on Indian economy. कहीं ना कहीं इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा, तो बस यही एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। इंफ्रास्ट्रक्चर में दो चीजें, रेलवे, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे, पॉजिटिव इम्पैक्ट, introduction of post office, positive impact, and it create a feeling of unity due to the introduction of railway, due to the traveling together, ठीक है। तो ये हमारा ओवरऑल जो तुम्हें इस लेसन में पढ़ना है, तो दो चीज आज हमने तीन चीजों को पढ़ा है सुबह से, ठीक है। एक आपको डेमोग्राफिक कंडीशन का नोट्स में कल लिखवाऊंगी और बताऊंगी, पॉइंट्स में समझाऊंगी, और दूसरा पॉजिटिव इम्पैक्ट।
टिल नाउ अगर कुछ किसी को पूछना है तो पूछ सकते हो। किसी को कुछ पूछना है बच्चों? पूछना है किसी को कुछ? तो ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लो, क्वेश्चन नोट कर लो। राइट डाउन द फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। एक्सप्लेन भी करोगे, पॉइंट्स लिख के एक्सप्लेन करोगे। राइट डाउन द फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस।